السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت سے دلوں میں چپ کر رہتا ہے۔ مسلم ہونے میں شرم کیوں؟ آج کے دور میں جب میڈیا اسلام کو صرف ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور آپریشن سے جوڑ کر دکھاتا ہے، ہمارے نوجوان اپنی پہچان چھپانے لگتے ہیں۔ اسکول میں، آفس میں، پبلک سپیسز میں انہیں لگتا ہے اگر ان کی مسلم آئیڈینٹی سامنے آ گئی تو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ احساس ان کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس پیدا کرتا ہے۔ لیکن اصل سچ یہ ہے کہ اسلام شرم کا نہیں، فخر کا دین ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان سے شرمندہ ہو گئے تو ہم اپنی بنیاد سے کٹ جائیں گے۔ یہ لیکچر ایک سفر ہے، اپنی اصلی عزت کو دوبارہ پہچاننے کا سفر۔ شرم کیوں جب اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہے؟ شرم کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روشنی کا راستہ دکھایا ہے؟ مسلم ہونے کا مطلب ہے اللہ کے چنائے ہوئے بندہ بننا۔ یہ پہچان شرم کی نہیں، فخر کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ ہاں، دنیا کے ایوارڈ اور سٹیٹس ٹیمپرری ہیں۔ ویلتھ، فیم، پاور سب چھن جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شرم جو پیدا ہوتی ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری اپنی کمزور سمجھ اور ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسلام اپنے اصل میں عزت، سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی دیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو دنیا کے سامنے جھکتا ہے وہ ذلت میں گرتا ہے۔ اس لیکچر سیریز کے 4 بنیادی مقصد ہیں۔ 1، مصیبت کی بحالی، نوجوانوں کو یہ احساس دلانا کہ ان کی آئیڈینٹی عزت کا باعث ہے۔ 2، اصل قدر کی پہچان، اسلام کی خوبصورتی اور یونیورسلٹی کو سمجھنا۔ 3، غلط فہمیاں کا ازالہ، میڈیا اور سوسائٹی کے مسکنسپشنز کو دور کرنا۔ 4، عملی اقدامات، پریکٹیکل سٹیپس دینا جسے ایمان اور آئیڈینٹی مضبوط ہو۔ اسلام صرف ریچولز کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے۔ اپنی پہچان کو چھپاؤ مت، اپنی عزت کو جگاؤ۔ اسلام صرف نماز نہیں، اسلام زندگی کا پورا نظام ہے۔ دنیا کے نزدیک عزت مال، سٹیٹس اور لائنیج سے ہوتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اصل عزت صرف اللہ کی اطاعت اور تقوی سے ہے۔ قرآن میں فرمان ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام اسلام میں پہلے مؤذن بنے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک غیر عرب اہل بیت میں شامل ہوئے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار صرف ایمان اور تقوی ہے۔ عزت مال سے نہیں، عزت رنگ سے نہیں، عزت صرف اللہ کی اطاعت سے ہے۔ ورلڈلی آنر ٹیمپوریری ہے، آج امیر کل غریب، آج پاورفل کل کمزور۔ یہ عزت ایروگنس پیدا کرتی ہے اور ایروگنس ذلت میں بدل جاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اصل عزت اندر سے ہوتی ہے، ایمان، تقوی، اخلاق۔ جب مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ رسے کرتے ہیں، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ ہسٹری اس بات کا ثبوت ہے۔ جب مسلمز قرآن اور سنہ پر قائم تھے وہ دنیا کے لیڈرز تھے۔ جب انہوں نے دین چھوڑا وہ ذلت میں گر گئے۔ جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ عزت میں ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ ذلت میں ہے۔ جب مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن اور سنہ کو اپنی زندگی کا رہنما بناتے ہیں، تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، تو اللہ ان سے عزت اور طاقت چھین لیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے وہ دنیا کے لیڈرز تھے۔ بغداد، کورڈوبا، کائرو سب علم اور انصاف کے مرکز تھے۔ لیکن جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا وہ ذلت اور رسوائی میں گر گئے۔ جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ بلند ہے،
जो नफरमानी में है वो जलील है। इस्लाम के आने से पहले अरब जाहिलिया के अंधेरों में डूबा हुआ था। बुत परस्ती, कबीले जंग, औरतों की बेइज्जती, गुलामों पर जुल्म, यह सब आम था। बितियों को जिंदा दफन करना एक रिवाज था। इंसानियत का तस्वुर खत्म हो चुका था। उस वक्त अरब दुनिया के नजदीक सबसे जलील कौम थी। न इल्म, न इंसाफ, न अखलाक, हर तरफ जुल्म और अंधेरा था। इस सूरत हाल में एक ऐसे दीन की जरूरत थी जो इंसानियत को इज्जत और रोशनी दे। अंधेरा था हर तरफ, इंसानियत सिसक रही थी। अल्लाह ने भेजा इस्लाम और रोशनी फैल गई। इस्लाम ने आते ही जहलिया के जुल्म का खत्मा कर दिया, बुत परस्ती खत्म हुई और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैला। औरतों को इज्जत मिली, गुलामों को आजादी मिली, इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है, हम सबसे जलील लोग थे जमीन पर और अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। ये कौल हमारे लिए एक रहनुमा है। असल इज्जत सिर्फ इस्लाम में है। जिल्लत से इज्जत तक का सफर इस्लाम ने इंसान को बुलंद किया। जो इस्लाम को थामता है वो कभी जलील नहीं होता। इस्लाम ने सिर्फ अरब को नहीं, पूरी दुनिया को रोशन किया। मुसलमानों ने इल्म, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी में बेमिसाल तरक्की की। एल्जिब्रा, एल्गोरिदम्स, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी सब मुसलमानों की देन है। बगदाद, कोर्दोबा, कायरो इल्म के मरकज बने। यूरोप जो तरीकी में था इस्लाम से रोशन हुआ। मुसलमान अपनी पहचान पर फख्र करते थे और दुनिया के लीडर्स थे। इल्म का नूर इस्लाम से फैला, इंसाफ का निजाम इस्लाम से कायम हुआ। जब मुसलमान दीन पर कायम थे वो दुनिया के पेशवा थे। हजरत बिलाल इब्न रबाश रदियल्लाहु अन्हु एक गुलाम थे जिनके पास न माल था न नसब, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनकी जिंदगी बदल गई। उनके मालिक उमैया इब्न खल्फ ने उन पर जुल्म किया, गर्म रेत पर लेटा, सीने पर पत्थर रखा, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की जबान पर सिर्फ एक नारा था, अहद अहद, अल्लाह एक है। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई नहीं बल्कि फख्र से, फर्ज से जाहिर की। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज मक्का की गलियों में गूंजती थी और दुनिया को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाती थी। अहद अहद की गूंज जुल्म के बीच भी बुलंद रही। बिलाल गुलाम से मुअज्जिन बने, इस्लाम ने उन्हें इज्जत दी। हजरत खबाब रजी अल्लाहु अन्हु एक गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन पर बहुत जुल्म हुआ, गराम अंगरों पर लिटाया गया, पीठ जल गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं। एक मर्तबा हजरत उमर राजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा अपनी पीठ दिखाइए, तो उनकी पीठ सेफ्ट हो चुकी थी जलने की वजह से। उनकी इस्तिकामत हमें यह सिखाती है कि असल इज्जत मुश्किलत के बावजूद दीन पर कायम रहने में है। खबाब राजी अल्लाहु अन्हु ने साबित किया कि ईमान की मजबूती इंसान को हर जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत देती है। अंगुरियों पर जिस्म जला लेकिन ईमान बुलंद रहा। खबाब ने साबित किया इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा है। अबू जहल ने उन पर जुल्म किया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान से इनकार नहीं किया। आखिरकार उन्हें नेज़े से शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि ईमान की हिफाजत के लिए जान देना भी कीमती है और औरतों की कुर्बानी इस्लाम की बुनियाद में शामिल है। समायहा रजी अल्लाह अन्हा की मिसाल हमेशा के लिए इज्जत और फख्र की अलामत है। शहीद हुई पहली मुसलमान औरत, अपनी जान दे दी, ईमान नहीं छोड़ा। सुमैया की शहादत इस्लाम की बुनियाद बन गई। इन सहाबा की कहानियां सिर्फ तारीख नहीं, हमारे लिए अमाली सबक हैं। 1. इज्जत का सरचश्मा अल्लाह है। 2. ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। 3. इस्तिकामत मुश्किलत के बावजूद असल कामयाबी है। 4.
इस्लाम नस्ली और सामाजिक इम्तियाज़त ख़त्म करता है। 5. दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देना वाजिब है। आज के नौजवान को ये मिसालें याद रखनी चाहिए। अगर वो अपनी पहचान पर फख्र करेंगे तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देगा। अपनी पहचान को छुपाओ मत, अपनी इज्जत को जगाओ। सहाबा की कुर्बानियां याद करो और फख्र से कहो, मैं मुसलमान हूं। आज के दौर में बहुत से नौजवान अपनी इस्लामी पहचान को लेकर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस्लाम बैकवर्ड है, मॉडर्न दुनिया के साथ मैच नहीं करता। ये एहसास अक्सर वेस्टर्न कल्चर के गलबे की वजह से पैदा होता है। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब जगह वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रोग्रेस के रूप में दिखाया जाता है। अगर आप उनकी तरह कपड़े पहनो, उनकी तरह बोलो तो आप मॉडर्न हो। अगर आप इस्लामी वैल्यूज पर कायम हो तो आप भी कूड हो। ये प्रोपेगंडा हमारे नौजवानों के दिलों में कमजोरी पैदा करता है। एहसास कमतरी से निकलो, इस्लाम तुम्हारी इज्जत है। मॉडर्निटी का मतलब उनकी नकल नहीं, असल प्रोग्रेस इस्लाम के निजाम में है। मगरिबी सकाफत का गलबा हमेशा से एक चैलेंज रहा है। फैशन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, सब जगह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। हमारे बच्चे इन चीजों से मुतासिर होते हैं और अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वो अपने नाम बदलते हैं, अपना लिबास बदलते हैं, अपनी जुबान बदलते हैं ताकि गैर मुस्लिम सोसाइटी में घोल मिल सके। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब एक कौम अपनी बुनियाद से कट जाती है तो वो अपनी असल खो देती है। वेस्टर्न कल्चर का गलबा टेम्पररी है, इस्लाम का नूर परमानेंट है। अपनी पहचान को छुपाओ मत, अपनी इज्जत को फख्र से जाहिर करो। आज के दौर में जो मुसलमान यूरोप, अमेरिका या दूसरे गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस और भी गहरा है। बहुत से लोग अपने नाम बदल लेते हैं ताकि उनकी पहचान छुप जाए। कुछ लोग अपनी दाढ़ी कटवा लेते हैं, हिजाब उतर देते हैं ताकि सोसाइटी में नॉर्मल नजर आए। लेकिन असल में यह एक खतरनाक रास्ता है। जब एक मुसलमान अपनी पहचान छुपाता है तो वो अपनी बुनियाद से कट जाता है। इस्लाम हमें फख्र देता है, शर्म नहीं। अगर हम अपनी पहचान को छुपाएंगे तो हम अपनी इज्जत खो देंगे। नाम बदलने से इज्जत नहीं मिलती, हिजाब उतरने से सुकून नहीं मिलता। असल सुकून अल्लाह की इताअत में है, असल इज्जत अपनी पहचान में है। मुसलमानों को अपनी पहचान पर फख्र करना चाहिए। कुरान और सुन्नह हमें इज्जत देते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है जो हर दौर के लिए रेलेवेंट है। आज के नौजवान को यह समझना होगा कि इस्लाम बैकवर्ड नहीं बल्कि टाइमलेस है। हर जमाने में इस्लाम इंसानियत को इंसाफ, इज्जत और रोशनी देता है। अगर हम अपनी पहचान को दोबारा समझ लें तो शर्म खत्म हो जाएगी और फख्र पैदा होगा। अपनी पहचान को दोबारा जानो, अपनी इज्जत को दोबारा पहचानो। इस्लाम तुम्हारी रोशनी है, इस्लाम तुम्हारी फख्र है। हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कुछ अमाली कदम उठाना चाहिए। नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाओ। कुरान को रोजाना पढ़ने की आदत डालो। अपने लिबास में हया और इस्लामी वैल्यूज रखो। अपनी जुबान और अखलाक को इस्लाम के मुताबिक रखो। ये छोटे कदम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। जब एक मुसलमान अपनी जिंदगी में इस्लाम को अमल करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी पर फख्र महसूस करता है। नमाज से रूह मजबूत होती है, कुरान से ज़हन रोशन होता है, अखलाक से इज्जत पैदा होती है, इस्लाम से पहचान बुलंद होती है। सिर्फ जाती अमाल काफी नहीं, कम्युनिटी लेवल पर भी कदम उठाना जरूरी है। यूथ सर्कल्स और स्टडी ग्रुप्स बनाएं। मस्जिद को सिर्फ इबादत का मरकज नहीं बल्कि एजुकेशन और यूनिटी का मरकज बनाएं। दवा का काम करें, इस्लाम की हकीकत को समझाएं। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स शुरू करें ताकि इस्लाम की पॉजिटिव तस्वीर सामने आए। जब कम्युनिटी एक साथ अपनी पहचान को मजबूत करती है तो इज्जत और यूनिटी दोनों पैदा होती हैं। मस्जिद को रोशनी का मरकज बनाओ, यूथ को इल्म का सफर सिखाओ। कम्युनिटी एक हो जाए,
इस्लाम की तस्वीर रोशन हो जाए। ग्लोबल लेवल पर मुसलमानों को अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए मीडिया, एजुकेशन और यूनिटी पर फोकस करना होगा। इस्लामिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करो, एजुकेशन में एक्सेलेंस हासिल करो, मुस्लिम यूनिटी के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो। जब मुसलमान ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान को फख्र से जाहिर करेंगे तो दुनिया इस्लाम को इज्जत के साथ देखेगी। ग्लोबल स्टेज पर इस्लाम को उठाओ, इल्म और मीडिया से रोशनी फैलाओ, यूनिटी से इज्जत पैदा करो और फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। पेरेंट्स और एल्डर्स का रोल बहुत अहम है। अगर वो अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम और इज्जत का एहसास देंगे तो नौजवान अपनी पहचान पर फख्र महसूस करेंगे। बचपन से अगर नमाज, कुरान और अखलाक की तालीम घर में मिले तो आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ वक्त गुजरना चाहिए, उन्हें इस्लाम की कहानियां सुनानी चाहिए, सहाबा की कुर्बानियां बतानी चाहिए। यह उनके दिलों में फख्र पैदा करेगा। घर से शुरू होती है तालीम, पेरेंट्स बनाते हैं पहचान मजबूत। अगर घर रोशनी से भरा हो तो बच्चे कभी शर्मिंदा नहीं होते। स्कॉलर्स और लीडर्स का फर्ज है कि वो इस्लाम की हकीकत को समझें और मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करें। मीडिया के प्रोपेगेंडा का जवाब देना, यूथ को गाइड करना और इस्लाम की पॉजिटिव तस्वीर सामने लाना उनकी जिम्मेदारी है। अगर स्कॉलर्स अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो नौजवान अपनी पहचान पर फख्र महसूस करेंगे। लीडर्स को अपनी कौम को यूनिटी करना होगा ताकि इज्जत और वकार दोबारा कायम हो। इल्म के रहनुमा बन जाओ, यूथ को रोशनी दिखाओ। लीडर्स अगर कदम उठाएंगे तो इज्जत दोबारा कायम होगी। इस्लाम को अक्सर बैकवर्ड समझा जाता है, लेकिन असल में इस्लाम टाइमलेस है। हर दौर में इस्लाम इंसानियत को इंसाफ, इज्जत और रोशनी देता है। मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की नकाल नहीं, बल्कि असल प्रोग्रेस इस्लाम के निज़ाम में है। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इस्लाम इन सब को सपोर्ट करता है। इस्लाम और मॉडर्निटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, बल्कि इस्लाम हर दौर के लिए रेलेवेंट है। इस्लाम बैकवर्ड नहीं, इस्लाम टाइमलेस है। मॉडर्निटी का असल मतलब इस्लाम के निज़ाम में है। अब वक्त है कि हम अपनी पहचान को फख्र से जाहिर करें। मुस्लिम होने में शर्म नहीं, इज्जत है। हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में इस्लाम को अमाल करना होगा, अपनी आइडेंटिटी को फख्र से दिखाना होगा। यह लेक्चर सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अमाल करने के लिए है। हर मुसलमान फख्र से कहे मैं मुसलमान हूं। शर्म को तोड़ दो, फख्र को जगाओ, अपनी पहचान को जाहिर करो और बुलंद आवाज में कहो मैं मुसलमान हूं। इस लेक्चर सीरीज का मकसद था अपनी पहचान को दोबारा समझना, अपनी इज्जत को दोबारा पहचानना। इस्लाम हमें डिग्निटी देता है, शर्म नहीं। अगर हम अपनी पहचान को फख्र से जाहिर करेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देगा। या अल्लाह हमें अपनी पहचान पर फख्र करने की हिम्मत दे। या अल्लाह हमें अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमा। सफर खत्म हुआ लेकिन रोशनी शुरू हुई। इस्लाम इज्जत का दीन है और मुसलमान फख्र का पैगम है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।